हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल एंड हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू फिजिक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था Gauss's law applications and now we will further continue the next Gauss's application, the applications of Gauss's law. We will calculate the electric field due to the spherical cell, charged spherical cell. Okay, and then we will discuss about the solid spherical cell, solid spherical charge solid spherical cell। उसके कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाएंगे सभी के सभी। क्या हाल चाल है भाई सभी के। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कुछ एप्लीकेशंस गॉसेस लॉ की, जिनमें हमने बताया था कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ड्यू टू द इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। एंड नेक्स्ट वी हैव डन द चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely charged sheet, and we have also done the electric field due to a point charge. Okay, and these were some applications. Now we will further discuss the electric field due to the spherical cell. Okay, charged spherical cell. Okay, so let's start spherical cell. Let's consider first of all next application, that is electric field due to electric field due to a charged spherical cell, charged spherical cell. So let's discuss. So first of all we will consider that is spherical cell of radius r. So let's discuss. Consider a charged spherical cell of radius capital R. Okay, now we can calculate electric field in three regions. First, outer side of the spherical cell, at the surface, and inside the spherical cell. So we will take three cases. Okay, so let's discuss. Let's spherical cell of radius r. Now we calculate electric field. We calculate electric field in three regions. First of all, if ठीक है, पहले हम लेंगे inside, second is on the surface, on the spherical surface, and third we will take inside. Okay, so ये inside हो गया। outside करते हैं इसकी जगह। So first we will discuss outside. Okay, so now take first case, that is suppose we want to calculate electric field at point P, which is at small r distance from center of sphere, So we use Gauss's law. We use Gauss's law.
फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए अपन क्या ले रहे हैं कि एक आर रेडियस का एक स्फीयर ले रहे हैं, ठीक है, चार्ज स्फेरिकल सेल ले रहे हैं देखिए कुछ इस प्रकार से अपने पास हमने बोला कि ये अपने पास एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, ठीक है, एक स्फेरिकल सेल ले रहे हैं अपने पास, अंदर से खोखला, ठीक है, होलो स्फीयर है और अपने पास चार्ज है ये, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर दिस इज द चार्ज एंड इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical cell, okay, and let's consider the charge is q and the radius is r, okay. So this is the center of sphere. Now we are taking first case, that is outside the spherical cell. How to calculate? So first of all, for any region, for any point, if you want to calculate electric field, just assume a spherical cell, a spherical surface, that is called Gaussian surface we consider. गाउसियन सरफेस लेते हैं जिस भी पॉइंट के ऊपर, सपोज कीजिए अपने पास पॉइंट पी के ऊपर अपने को कैलकुलेट करना, सो नाउ वी कंसीडर द गाउसियन सरफेस. Imaginary surface is called Gaussian surface, and the conditions of taking the Gaussian surface is on this surface either electric field should be zero, or we can say electric field, the component of electric field or electric field should be perpendicular on that surface, okay. So these are some criteria of considering the Gaussian surface. So at point P, so in this situation, if we take a spherical Gaussian surface, then it's fitted according to our conditions of Gaussian surface. So let's assume here that this is the Gaussian surface, a spherical Gaussian surface. This is the spherical Gaussian surface, okay. Okay. So now how to calculate electric field? So for calculating electric field, we use the Gaussian surface, and by the Gauss law, so if we say now by Gauss Gauss's law, we know that closed integral over the Gaussian surface E of electric field, E vector dot dA vector is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed in the Gaussian surface, that is Q enclosed. This is the simple expression of Gauss's law. Okay, so now first of all consider a small area element surrounding a point that is we have assumed here point P. So here we consider this is the area element dA, and now we can see here the direction of electric field. The direction of electric field for the positive charge is outward, radially outward. So if we see here, that is, if we see here, this is the electric field. This is the electric field direction, E vector. This is the direction of electric field, and the direction of area vector, the element of area vector, the area vector dA vector, the direction is also dA vector in this situation, n cap. Here we can say dA vector is equal to dA n cap, और n cap की जगह अपन यदि r cap लिख दें, ठीक है, r के वेक्टर की डायरेक्शन में, दिस इज द r vector, so here r cap is we can write r cap, dA r cap, okay. So now simply we solve the dot product, that is E dA cos theta, and here we can see Q enclosed upon epsilon naught. So here theta is equal to 0, ठीक है. E vector and r vector, E vector and dA vector, sorry, the angle is between the electric field vector and the area element vector. Theta is 0, so cos 0 is equal to 1, and we have already discussed the electric field magnitude. The magnitude of electric field over the Gaussian surface is constant. Over the Gaussian surface is constant, so we can take out, we can take outside the magnitude of electric field outside from the integration. So here E is equal to E into closed integration of dA is equal to Q n close upon epsilon naught. So now if we
if we see here that this is the area element and it is integrating over the Gaussian surface and it forms the spherical, it forms the area of the Gaussian surface, Gaussian spherical cell, and we can see the area here will be 4 pi r square. Okay, this is the sphere, not a circle. Okay, so we can take here 4 pi r square. So here we take E into, this is the 4 pi r square and this is the Q enclosed. Here we can see in the Gaussian surface, inside the Gaussian surface, total charge enclosed is capital Q. ओके जितना भी चार्ज है इस गाउसियन सरफेस के अंदर, जो चार्ज एनक्लोज्ड है कितना है, कैपिटल क्यू है. सो क्यू लिख देते हैं. लेट्स सी हियर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ इफ वी फर्दर कैलकुलेट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ओके एंड this is in the next step E is equal to, we can write here the k q upon r square. This is the expression of the electric field at the outside of any point P from the spherical cell. Okay, charge is q, k q upon r square, and this electric field expression is similar to a point charge. ओके ये सेम टू सेम एक पॉइंट चार्ज की तरह है. मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इट इज बिहेविंग लाइक दिस, इट बिहेव्स लाइक दिस. द पॉइंट चार्ज Q इज सेंटर्ड एट पॉइंट O, इज सेंटर्ड एट, virtually we can see this is the capital Q charge centered at point O, and at this R we can calculate E is equal to k q upon r square. So and the graph here we can say the graph will be looks like this, E and the R here. So in this second situation, okay, this is the first case, but if we take second case, when point P is at surface of this spherical, this sphere surface of sphere, charged sphere, that is we can say R is equal to capital R. मतलब जो अपने पास जो डिस्टेंस है, जो सेंटर से O से, जो सेंटर से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी. R अपने पास रेडियस है, ठीक है. कैपिटल R इज इक्वल टू R. नाउ इन दिस सिचुएशन द गाउसियन सरफेस will take the shape of the spherical, the sphere. So the surface of this sphere behaves like a Gaussian surface. We don't need to consider any of other Gaussian surface. This behaves like a Gaussian surface. The surface of the spherical, the surface of this sphere. ठीक है. अब मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि जो सरफेस है, ये जो इस अपने पास जो स्फीयर है, इस स्फीयर की जो सरफेस है वो ही बिहेव करेगी एज ए गाउसियन सरफेस. ठीक है. डोंट नीड टू कंसिडर एनी अनदर गाउसियन सरफेस. मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इन सिचुएशन यदि हम डायग्राम बनाएं, ठीक है, यदि हम बनाएं डायग्राम कि ये अपने पास एक स्फीयर हो गया जो अपने पास था, ठीक है, ये कैपिटल अपने पास R थी, रेडियस, एंड नाउ in this situation the point P is at the surface of sphere. So here we can take, this is the point P, and here the Gaussian surface is itself a surface of the sphere. So here we can see R is equal to capital R is equal to small r is equal to capital R, and in situation we can direct put small r is equal to capital R. So here electric field is equal to k q upon capital R square, and this is the constant because the radius, all the parameter or the constant here, all the constant are here k is constant, q capital R. So here we can say this is the constant electric field, E and distance at the surface. But if we consider the case 3,
इफ वी टेक थर्ड केस में ये होगा अपने पास, ठीक है, इफ पॉइंट P is inside this sphere, ओके। यदि पॉइंट P इनसाइड स्फीयर के है, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में हम ये बोलेंगे दिस इज द स्फीयर एंड द पॉइंट P, सपोज दिस इज द सेंटर O एंड पॉइंट P जो अपने पास है इनसाइड है, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो ये अपने पास जो स्मॉल r है, ये पॉइंट P हो गया। स्मॉल r पर यदि अपन ये गाउसियन सरफेस ले, वी टेक कंसिडर द गाउसियन सरफेस, देन इट लुक्स लाइक दिस एंड द रेडियस विल बी कैपिटल R ऑफ दिस स्फीयर। इस सिचुएशन में ये होगा अपने पास, if I use the Gauss again using Gauss's law, तो अपने पास सेम टू सेम अपन ये बोल सकते हैं द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द Gaussian surface is equal to 1/epsilon times the charge enclosed in the Gaussian surface. And here, as we can see, in the Gaussian surface there is no any charge enclosed. No any charge enclosed in the Gaussian surface. In the third case, here we are calculating electric field inside the sphere, inside the charged sphere. So here inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface, the enclosed charge is zero. Enclosed charge is zero, so we can see electric field is also zero. इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि हम डिस्टेंस की बात करें, इन साइड में जो है ज़ीरो होगा। इन साइड में क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अपन यदि इन तीनों को केसेस को यदि मर्ज कर दें, ठीक है, अपन तीनों केसेस को एक साथ यदि स्टडी करना चाहें, तो जो अपने पास जो ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, डिस्टेंस सेंटर से, distance from the center of sphere, we are taking distance from the center of sphere. Now in this situation the graph looks like this, and this is the question also of JEE examination. This is the distance r and electric field E. Inside, suppose this is the capital R, here is the small r is equal to capital R, and here is small r less than capital R, and here is small r greater than capital R. This is the center O. So it looks like this. This is the sphere and नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो देखिए अंदर की यदि बात करें तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट एट द सरफेस मीन्स हम बोले at r is equal to capital R, electric field is kq upon r square. Let's say this is the kq upon r square, this is the kq upon r square, this is the kq upon r square, and further outside this sphere it varies like this, E inversely proportional to the square of the r, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये अपने पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन बाय द यूजिंग ऑफ गाउसेस लॉ। 3 केसेस हैं, ठीक है, इनसाइड एंड द सरफेस एंड द आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। जल्दी से नोट करेंगे इसको और फिर हम आगे फर्दर डिस्कशन में लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ अब हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। अपने पास यदि हम बोलें कि ये तो अपने पास स्फेरिकल था, होलो स्फीयर था, ये क्या था अपने पास, एक होलो स्फीयर था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, होलो स्फीयर था। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस सॉलिड स्फेरिकल सेल, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड की बात करें, ठीक है, ठोस गोले की बात करें जो चार्ज्ड है इनसाइड में, या हम इसको नॉन कंडक्टिंग भी बोल सकते हैं। और ये जो अभी
केस क्या है, ये कंडक्टर के लिए भी वैलिड है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर यदि अपन चार्ज दें तो वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर दिस सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज लिख लेना, चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ओके, 3 केस लेंगे सिमिलर टू फर्स्ट वन। अपने पास 3 केसेस लेंगे। पहला अपने पास आउटसाइड लेंगे, ऑन दी सरफेस लेंगे, एट दी सरफेस लेंगे, और एक इनसाइड लेंगे, ठीक है। तीनों केसेस लेंगे। चलिए तो पहले केस की दी मैं बात करूं, केस नंबर फर्स्ट की दी बात करूं, पहले केस की बात करें, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, ठीक है, व्हेन point P is outside the sphere। थ्योरी जो है सेम टू सेम सिमिलर जो पहले वाला लिखा वो ही लिख लेंगे, बट अब की बार क्या कर देंगे, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। जब आउटसाइड की हम बात करें, जब हम आउटसाइड की बात करें तो देखिए आउटसाइड में क्या होगा अपने पास, दिस इज द स्फीयर। Consider the sphere of capital R radius which is uniformly charged inside and outside everywhere। और सॉलिड है तो अपने पास अंदर भी यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, क्योंकि अंदर भी क्या है, मैटर है। जहां जहां मैटर होगा वहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज चार्ज एग्जिस्ट ऑन द मैटर। अब इन आउटसाइड की हम बात करें, लेट्स से द पॉइंट इज आउटसाइड दिस इज द आर वेक्टर। एट पॉइंट पी वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलर गाउसेस लॉ हम लेंगे, बहुत इजी हो जाता है। गाउस जो लॉ है अपने पास बहुत कुछ इजी कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। अदरवाइज सिंपल हम कूलम्ब्स लॉ से हम देखें तो बहुत टफ पड़ जाता है। तो सिमिलर हम बात करेंगे द डेफिनेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज दी और दी Gaussian surface, this is the surface S। Here we again take the small area element dA vector and the direction of electric field, and dA vector is equal to same, so theta is equal to 0 degree। E vector in the direction of parallel to dA vector, so theta is equal to 0 cos 0, and electric field, magnitude of electric field is constant over all the Gaussian surface because magnitude of electric field depends on the distance। डिस्टेंस के साथ वेरी करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ओवर द गाउसियन सरफेस, एंड अगेन वी टेक डी ए क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो हियर डी ए इफ वी solve the closed integration, then this takes forms of a area of the Gaussian surface, and this is the 4 pi r square। q n closed is equal to capital Q, this is the charge is capital Q। So again 4 pi r square, and this also takes kq upon r square। This is the similar like a spherical cell, charged spherical cell। But if we talk about the case second, point P is at surface, मीन्स हम ये बोल सकते हैं क्या, कैपिटल स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। दिस इज द स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। सो हियर वी कैन अगेन टॉक लाइक दिस। दिस इज दी अपने पास स्फीयर हो गया,
and again the charge is capital Q, uniformly charged. We can write down its density also. This is this centro and charge is capital Q. Point P is at surface. Point P is at the surface of a sphere. This is the point P. So here we can direct put R is equal to capital R. ठीक है, in above formula देखिए कैसे पुट करेंगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर देंगे तो E इज इक्वल टू होगा अपने पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस इज द कांस्टेंट. एंड थर्ड केस हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड केस हम बात करें when point P lies inside the sphere, means स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर. यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला केस. यदि हम बात करें पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर, हम बात करना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये अपने पास ये स्फीयर है, ठीक है, ये अपने पास सॉलिड स्फीयर है जिसके पास जो है चार्ज है कैपिटल Q, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द होल structure. This is the center O. Now let's see, suppose point P lies inside here is the R vector, this is the point P. अब यहां पर हम बात करें गाउसियन सरफेस लेंगे, सिंपल गाउसियन सरफेस ही लेते हैं भाई. जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, जब हमें यूनिफॉर्मली स्ट्रक्चर्ड जो अपने पास जो यूनिफॉर्मली शेप जो होती है वहां से यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है तो गाउसियन सरफेस लेंगे, dA एलिमेंट लेंगे, दिस इज द dA वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. अगेन वी यूज द गाउस, अपने पास गाउसेस लॉ, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू Qn क्लोज अपॉन एप्सिलॉन. अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट तो सेम ही है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में. तो हम बात करें थीटा इज इक्वल टू 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन बाहर आ जाएगा, डी इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई. डी ए जो होगा अपने पास ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और ये होगा अपने एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. अंदर जो है गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है वो इंपॉर्टेंट है. यहां पर देखिए गाउसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज था वो कैपिटल क्यू था. इस सिचुएशन में भी हम बात कर सकते हैं जो गाउसियन सरफेस के अंदर जो है टोटल चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू ही है. बट यहां पर देखिए, यहां पर एज वी कैन सी ये जो बाहर का जो चार्ज है ये बाहर रह गया, ये आउटसाइड है, अंदर नहीं है गाउसियन सरफेस के. तो गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो इंपॉर्टेंट मैटर करेगा. और हमने आपको बता रखा है, हमने आपको बताया होगा, क्या बताया था हमने आपको हमने आपको ये बताया था कि जो चार्ज डेंसिटी होती है रो इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी वी, एंड जहां भी चार्ज निकालना हो तो रो अपने पास आ जाता है डी वी. ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में. रो यहां पर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्यू अपने पास हो जाएगा, रो बाहर आ जाएगा और डीवी जहां जहां जिस वॉल्यूम में आपको कैलकुलेट करना है वो अपने पास ये हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा. अब हमें तो केवल ये वाला वॉल्यूम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई कैपिटल स्मॉल आर क्यू, यानी 4/3 पाई आर क्यू. एंड फर्दर वी कैन कैलकुलेट रो जो है वो होगा अपने पास होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम कौन सा आएगा, सारे बिग जो अपने पास ओरिजिनल जो स्फीयर है वो वाला 4 पाई आर क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू. एंड दिस इज दी 4 पाई टू 4 पाई कैंसिल, क्यू इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यू. दिस इज दी चार्ज एनक्लोज्ड इन दी गाउसियन सरफेस. सो डायरेक्ट पुट क्यू आर क्यू, क्यू स्मॉल आर क्यू. ओके 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 सही है क्या?
सही है, ठीक है, सही है, क्यू आर क्यूब अपन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए आगे की बात करें हम, देखो इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कैपिटल क्यू, कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास बचेगा क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एंड दिस फॉर्म दी फोर्स कांस्टेंट यानी के आर अपॉन, ठीक है, और नो दिस फॉर्म द के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम ये लिख सकते हैं के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर अपने पास जो डिफरेंट एक्सप्रेशन आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, नॉट द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और के आर के प्रोपोर्शनल, स्मॉल आर के 1 पावर के, ठीक है। डायरेक्शन तो आपको पता आउटसाइड है, ठीक है। ये अपने पास फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ग्राफ हम ड्रॉ करें इन तीनों केसेस का हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ को हम अलग से नए पेज में आप लिखना, नए पेज में आप कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर आर है, स्मॉल आर, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये अपने पास कैपिटल आर है, ये जो है आर ग्रेटर देन कैपिटल आर लेस देन कैपिटल आर, और यहाँ पर यदि आप देखें, ये हम देखें आर से जो पीछे है, यानी ये क्या है, स्फीयर के इनसाइड है, स्फीयर के इनसाइड में जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी जिसकी जो वैल्यू है अपने पास है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और आउटसाइड में एज यूजुअल इस प्रकार से वेरी करें, ठीक है। ये अपने पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब जो है जितनी भी एप्लीकेशंस है कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी आगे हम जेई के कुछ क्वेश्चंस हैं जो गॉसेस लॉ के ऊपर बेस्ड है वो भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इस लेक्चर को हम केवल इतना ही रखते हैं। हमारी एप्लीकेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, फिर नेक्स्ट जो है नए सिरे से हम स्टार्ट करें, नए चैप्टर से, सॉरी चैप्टर नहीं, नए टॉपिक से। चैप्टर भी चल ही रहा है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है अपने पास, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना पास चल रहा है, वही चैप्टर, ठीक है। नए टॉपिक से हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए क्या करेंगे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।